और आपको बता दें, राजनीति की खबरें तो जारी ही रहेंगी, लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं। बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो रहा है, सीधे सुनते हैं। Very good afternoon to all of you. The Senior Selection Committee had its meeting to select the World Cup squad of 15 this afternoon. Even for you. Shall I? Okay. Virat Kohli captain. Rohit Sharma vice captain. Shikhar Dhawan, KL Rahul, Vijay Shankar, MS Dhoni wicketkeeper, Kedar Jadhav, Dinesh Karthik, Y Chahal, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, R. Jadeja and Mohammad Shami. If you have the names with you, you are most welcome to go ahead with your questions to the chairman. I will. Can I repeat the names? Virat Kohli captain, Rohit Sharma vice captain, Shikhar Dhawan, KL Rahul, Vijay Shankar, MS Dhoni wicketkeeper, Kedar Jadhav, Dinesh Karthik, Y Chahal, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, R. Jadeja, Mohammad Shami. That's the Indian World Cup squad for the World Cup 2019. Yes. Rishabh Pant was heavily picked to be in the team, but missed out here. Could you explain the reasons to us why he was? Well, it's definitely a case where we have debated at length, and all of us in unison, we all felt that either Rishabh Pant or DK will only come into the playing 11 if Mahi is injured. So at that juncture, if it is a crucial match like a quarterfinals, like a semi-finals or an important game, wicket keeping also matters. So that's the reason. That's the only reason why we went ahead with Dinesh Karthik. Otherwise, Rishabh Pant was almost there. Good answer. The other important point is 3 spinners in English conditions. Can you explain that? Well, in the last 1.5 years, it is these 2 Ristis who have won us games. But there might be a situations where you might require an additional all-rounder in the playing 11, which Jadeja brings in. So in the second part of the second part of the tournament, where wickets might be a bit more drier, so that's where we felt that Jadeja will come in handy. So that's the reason why he's been picked in. Chairman, the cut-off date, the Champions Trophy and the cut-off date. After that, selection will put its weight on Bhatti Radu number 4. Wicket keeping also matters. So that's the reason. That's the only reason why we went ahead with Dinesh Karthik. Otherwise, Rishabh Pant was almost there. Good answer. The other important point is 3 spinners in English conditions. Can you explain that? Well, in the last 1.5 years, it is these 2 Ristis who have won us games. But there might be a situations where you might require an additional all-rounder in the playing 11, which Jadeja brings in. So in the second part of the second part of the tournament, where wickets might be a bit more drier, so that's where we felt that Jadeja will come in handy. So that's the reason why he's been picked in. Chairman, the cut-off date, the Champions Trophy, the cut-off date. After that, selection will put its weight on Bhatti Radu number 4. Yes. He played 21 matches, scored 400 runs. It was not a total failure. What went against him? Why is it the age or
What would the factors went against it? Well, after the Champions Trophy, we have tried quite a few middle order batsmen, which also includes Dinesh Karthik at that order. And we also tried Shreyas Iyer and Manish Pandey. We did give a few more chances to Raidu. But what Vijay Shankar offers is three dimensions. Apart from his batting, he can bowl. If the conditions are suitable, I mean, if the conditions are overcast, which we might encounter in England, he might bowl a bit, and he's a fantastic fielder. That's the thing that went in favor of Vijay Shankar. Primarily, does he come in as a batsman, Vijay Shankar? Yeah, he's a batsman who can bowl. So you are seeing him with the number 4 batsman. We are looking at him at number 4, and we are also looking at, we have with Dinesh Karthik in, and also Kedar Jadhav in there. So we have plenty of options at that number 4 right now. Oh, same question. Yeah. You are looking at him as number 4. Yes, to begin with. Sorry. Yeah. You just mentioned briefly about Ryan, who played about majority of the games in the last mentioned about 20 or 4 years, and both you and Bodhi have spoken about him as a number 4. We just wanted to follow that up. Well, it's not anything that went against him. It's only the thing that went in favor of Vijay Shankar. So because he adds a bit more dimensions to that role, and with his fielding and bowling abilities, that's where he scored ahead of him. One is when it comes to the conditions in England, and I understand how it adds the much to balance, but how tricky is it to go in with only 3 specialists to a tournament like the World Cup? So apart from these 3 specialist pacers, we also have Hardik who can bowl. So is Vijay Shankar. So in the team, see if you look at it in the team, apart from those 2 spinners, we also have Kedar. So this is I think we have this luxury of 7 bowlers. So I think we've covered all the bases that way if you look at it, and I'm sure this is one of the most balanced sides that we have produced. Chairman, कोई भी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज कीपर नहीं है क्या? खलील अहमद का नाम भी डिस्कशन में? यस, खलील अहमद का नाम भी डिस्कशन आया, उसके साथ साथ सैनी का नाम भी डिस्कशन आया. So they will be in around, and if the need arises, definitely one among them will be picked next. Yeah. Are there any reserve or standard players in this one? And was it the most challenging selection committee meeting for you during your tenure so far, or is it just? Well, we've been planning soon after the completion of Champions Trophy for this, but let me frankly tell that in the last month or so, there were a couple of places which have really cropped up, like Vijay Shankar and. Is it reserve? Yeah, we do have reserves. We'll let you know in that. Excuse me? Yeah. So let's say if the team decides to put MS Dhoni as number 4, so that comes under Europa. Will you discuss that as well, or it's like? Yes, it was discussed, and I don't think that was the point. The point that was discussed is that Vijay Shankar will bat at number 4, and so is Kedar Jadhav, and we also have a role for KL somewhere at the top of this. Yeah. Do we see KL as the reserve opener, or can he come at number 4 also in the middle order also? To begin with, he will be only a reserve opener. If need arises, it all depends upon the team management's call. ये है वर्ल्ड कप की इंडिया, शानदार जानदार वजनदार टीम का ऐलान कर दिया गया है बीसीसीआई की ओर से, और अब इन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर इस बात का दारोमदार है, इस बात की जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि 1983, 2011 की तरह 2019 में भी वर्ल्ड कप अपने नाम करें. टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. 3 नाम जिनको लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि कौन हो सकता है, उसको लेकर अलग अलग बातें भी सामने आ रही थी. विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया है. विराट कोहली की अगुवाई में अब ये टीम पूरी तरह से तैयार है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और इसी पर बातचीत करने के लिए आज तक ने कर रखे हैं खास इंतजाम. सबसे जानदार और शानदार पैनल हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट का. जल्दी से उनका परिचय करा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो 2 बेहद खास मेहमान हैं, उनमें से एक मोहम्मद अजरुद्दीन, जिन्होंने
3 बार तक हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया है वर्ल्ड कप में और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी किसी खिलाड़ी के लिए। बहुत स्वागत है अजरुद्दीन आपका। और मदन लाल जी 1983 के उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा जिन्होंने हिंदुस्तान को गर्व करने का, नाज करने का मौका दिया था। एक एक खिलाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वो चेहरे हैं वर्ल्ड कप की टीम इंडिया। देखिए रोहित शर्मा, शिखर धवन ओपनिंग की जिम्मेदारी जिनके ऊपर रहेगी। विराट कोहली कप्तानी करेंगे, उप कप्तान रोहित शर्मा, केदार जाधव, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, KL राहुल, विजय शंकर, रविंद्र जाडेजा, दिनेश कार्तिक। ये वो 15 हमारे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर अब इस बात की जिम्मेदारी होगी कि ये वर्ल्ड कप जीत कर आए हिंदुस्तान के लिए और इनका चयन किया गया है। सबसे पहले आपसे ही अजरुद्दीन, ये जो टीम इंडिया का सिलेक्शन किया गया है किस तौर से देख रहे हैं आप, खासतौर से विजय शंकर, रविंद्र जडेजा और दिनेश कार्तिक? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में हम लोग जो मैं जो टीम और मदीपा ने जो टीम सेलेक्ट की थी बिल्कुल उसमें से एक चेंज है, दिनेश कार्तिक को लिया गया है। अब जैसा कि मैं अभी MSK प्रसाद का जो चेयरमैन है उनके बारे में उनके कमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर विकेट कीपर अगर धोनी कभी अगर इंजर्ड होते हैं तो एक विकेट कीपर दिनेश कार्तिक को हम ले जा रहे हैं। तो जब आप ऋषभ पंत नए उभरते हुए खिलाड़ी है, यंग प्लेयर है और उन्हें टेस्ट मैच में भी आप उनको जब कीपिंग करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि वो अच्छे कीपर नहीं है। तो जब आप अच्छे कीपर नहीं है तो टेस्ट मैच में भी नहीं खेलना चाहिए, टेस्ट मैच में भी उनको खिलाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप उनकी प्योरली अगर कीपिंग देख रहे तो अगर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में अगर आप कंपेयर करेंगे तो दिनेश कार्तिक से कहीं ज्यादा आगे ऋषभ पंत मेरे ख्याल में 100% ऋषभ पंत होना चाहिए। कार्तिक ठीक है, अच्छे प्लेयर है, उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, इतना ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया है। मैंने अब तो टीम चुन ली है तो मैं दैट्स व्हाई हम इसकी बात कर रहे हैं। आपने भी जो टीम चुनी थी उनमें से आप दोनों की टीम लगभग सेम थी, मोरल सेम ही थी। बट मैं जो अजहर ने कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए एक ऋषभ पंत इतना टैलेंटेड खिलाड़ी, अगर आप उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैं अगेंस्ट दिनेश कार्तिक नहीं बोल रहा, ठीक है। उन्होंने क्या है कि देखिए एक तो जब भी बैटिंग करते हैं मैच जिताते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आज यहाँ पे बैठ कर कि ये इनको मिस करेंगे 100% मिस करेंगे। बड़ी गलती फिर कैसे कर सकते हैं अगर मिस करेंगे? बिल्कुल सही कहा ने। देखिए उसको आप टेस्ट मैच में कीपिंग करा रहे हैं, हर मैच में आप कीपिंग करा रहे हैं, अब उसको कह रहे जी वो कीपर अच्छा नहीं है। और दिनेश कार्तिक जो है, बात पूरी करें उसके पहले जरा जल्दी से, चूंकि ये खास तौर से अपने दर्शकों के लिए हमने इंतजाम भी कर रखे हैं क्योंकि उनको एक एक चीज समझ में आ पाए। वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो आपको दिखा रहे हैं। पहला मुकाबला हिंदुस्तान का 5 जून को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 9 जून को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। लेकिन जिस मुकाबले का इंतजार हम सब करेंगे, हालांकि पहला दूसरा बाकी मुकाबले तो जीते ही, भारत और पाकिस्तान का उसका शेड्यूल है 16 जून को। 16 जून को एक एक करके वो शेड्यूल भी फिलहाल ये देखिए वर्ल्ड कप के जो मुकाबले होने हैं उनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ, मदन लाल जी। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका के साथ है, साउथ अफ्रीका, माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका। देखिए ये जो वर्ल्ड कप है इसमें जब आप जाते हैं खेलने के लिए तो इसमें ये जो आपके 40-50 दिन होते हैं इसमें अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी रहता है। और आप किसी भी टीम को कमजोर नहीं आ सकते क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। मतलब एक दिनेश कार्तिक को लेकर आप लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं। जल्दी से विक्रांत के पास, देखिए वो दिनेश कार्तिक कीपर जो है उससे अच्छा नहीं है, बिल्कुल वो उतना ही अच्छा जितना वो अच्छा है। ठीक है, मतलब ऋषभ पंत को ये टीम मिस करेगी। हमारे दोनों एक्सपर्ट जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो मानते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त मुंबई का विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, टीम इंडिया का ऐलान हो गया है, ये वो 15 चेहरे जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी वर्ल्ड कप दिलाने की। विक्रांत, देखिए हल्की फुल्की नुक्ताचीनी जरूर हम कर सकते हैं चित्रा कि ऋषभ पंत क्यों नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत और अंबाती रायडू 2 खिलाड़ियों को यह भी समझना होगा कि जो मौके इनको मिले थे क्या इन्होंने उन मौकों को भुनाया। अंबाती रायडू तो फर्स्ट चॉइस थे, तकरीबन 1 साल टीम में उनमें इन्वेस्ट किया, आज वो टीम में नहीं है, उनका अपनी गलती है। और मुझे लगता है कि अजहर भाई ने बात तो सही की है कि अगर सिलेक्शन कमेटी ये कहे कि हमने इसलिए ऋषभ पंत को नहीं चुना कि एक स्टैंड इन विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक बेहतर हैं और ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट खेलते, तो ये बात वाजिब नहीं है, ये हजम नहीं होती। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को भी शायद एक बैट्समैन के तौर पर पनिश किया गया है। ये कहा गया कि अभी तैयार नहीं है, जिस तरह से वो आउट हो जाते हैं या विकेट फेंक देते हैं, मुझे लगता है कि मोर देन अ पनिशमेंट ये दिनेश कार्तिक वापस जरूर आए हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले तो आपने उनको रिजेक्ट कर दिया था। आपने कहा था वो फिनिशर है, अब आप कहते हैं कि नंबर 4 पर भी खेल सकते हैं। लेकिन टीम चित्रा देखी जाए तो ठीक चुनी गई है, कंडीशंस के हिसाब से चुनी गई है। एक टेम्पटेशन थी कि क्या आप 4 तेज गेंदबाज लेकर जाना चाहेंगे और 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। मुझे लगता है कि सेफ भी रहे सिलेक्टर्स और शायद हर बेस को आपने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि को लेकर जाना जरूरी है। हो सकता है पहले मैच की 11 ना खेलें, हो सकता है दूसरे मैच की 11 ना खेलें, लेकिन कप्तान को वो ऑप्शन देंगे उस वक्त जब आपको एक ऐसा मैच विनर चाहिए होगा जो गेंद, बल्ले और फील्ड तीनों के साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है।
बिल्कुल, और लगातार वो 15 चेहरे भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। वर्ल्ड कप की ये है इंडिया की टीम जिसके ऊपर अब ये जिम्मेदारी है 1983 2011 का प्रदर्शन दोहराने की। और सबसे पहला शेड्यूल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मुकाबला होना है 5 जून को, जिसके लिए इन्हें कमर कसनी होगी। जिम्मेदारी ओपनिंग की रोहित शर्मा और शिखर धवन पर होगी और बाकी के खिलाड़ी। लेकिन नंबर 4 को लेकर बार बार जो कयास लगाए जा रहे थे, विक्रांत नंबर 4 कौन? वो तो बोल दिया एमएस के प्रसाद ने कि विजय शंकर को नंबर 4 देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक मजबूत विकल्प है। वो एक विकल्प है लेकिन शायद मजबूत विकल्प नहीं है। कई सारी ऑप्शंस होंगी। हो सकता है किसी मैच में आपको दिनेश कार्तिक नंबर 4 पर दिख जाए। यह भी हो सकता है कि केएल राहुल आपको कभी नंबर 4 दिख जाए, बल्कि यह भी मुमकिन है कि 3 नंबर केएल राहुल खेले और विराट कोहली 4 हो। 4 को लेकर समस्या आज की नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से चल रही, जब से सुरेश रैना, युवराज सिंह ये लोग टीम से बाहर हुए। नंबर 4 एक श्राप के तौर पर बन गया। जो खिलाड़ी को ट्राई किया वो सब एक एक कर बाहर हो गए। विजय शंकर ऑलराउंडर है, वो गेंद भी कर लेते हैं, लेकिन बैट्समैन के तौर पर नंबर 4 बहुत अहम है। चित्रा, मैच कभी आपको 20 2 ओवर पे बैटिंग करने जाना है, कभी हो सकता है कि सिर्फ 12 ओवर रह गए और आपको 190 2 ओवर पर बैटिंग करने जाना है, तो नंबर 4 आपका बड़ा मजबूत होना चाहिए। विजय शंकर ने प्रॉमिस दिखाया है, लेकिन आईपीएल में भी आप देखिए पिछले 4-5 मैचों में वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं मैचों को। आपको नंबर 4 पर वो मैच्योरिटी चाहिए होगी। हो सकता है कि धोनी कभी नंबर 4 पर बैटिंग करे, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, आपने बेसिस अपने सारे कवर कर। उम्मीद करते हैं कि चूंकि नंबर 4 पर लाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वर्ल्ड कप के लिहाज से विजय शंकर को दी जा रही है और बहुत बड़ा मौका इस खिलाड़ी के लिए। उम्मीद है कि कम से कम हमारी उम्मीदों पर, 130 करोड़ की आबादी की उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप की संभावनाओं को लेकर जब इस खिलाड़ी की एंट्री को लेकर चर्चा हो रही थी, उस वक्त विजय शंकर की ओर से क्या कुछ कहा गया था, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। I think I've been having quite a good time the last 3-4 months, but I feel, the way I've been working hard and the way I've been, putting effort on all practice sessions and the way I train everything, so that has taken me here, and for me every game is very important. And excellent balance there. बहुत बड़ा मौका मिला है इस खिलाड़ी को और हम पूरी उम्मीद करते हैं। विक्रांत हालांकि जिक्र कर रहे थे कि मैच फिनिश वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि बात वर्ल्ड कप की है, बात इस देश की है, देश को प्रतिनिधित्व करने की है, तो उम्मीद है कि इंग्लैंड की जमीन पर जाकर कोई भी खिलाड़ी हिंदुस्तान का वो हमें निराश नहीं करेगा। जल्दी जल्दी एक कमेंट आपका भी अजरुद्दीन जी, किस तरह की उम्मीदें? विजय शंकर को एक बहुत बड़ा मौका, अब उनको प्रूव करना होगा खुद को। बिल्कुल प्रूव करना होगा, क्योंकि इनके लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मेरे ख्याल में उनको खेलना चाहिए। जैसा कि विक्रांत ने जो कहा था कि 4 साल से हम लोग नंबर 4 बैट्समैन को ढूंढ रहे, खोज हो रही, कोई नहीं, बट आप कोई बैट्समैन को 4 नंबर पे खिला रहे ही नहीं, उसको चांस ही नहीं दे रहे कि आज 6 या 7 मैच खेलने का। अब हर 2 मैच में अगर 4 नंबर को चेंज करते रहेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, उसी वजह से प्रॉब्लम है। अगर कोई प्लेयर को अगर आप कह देंगे 4 नंबर पे आपको खेलना है, 4-5 मैच खेलना है, तो वो डिलीवर करेगा। उसको पता ही नहीं होता कि मैं आज 4 खेल रहा हूँ या 5 खेल रहा हूँ, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 4 बहुत सब में महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होते हैं वनडे में और टेस्ट मैच में। बिल्कुल सही। देखिए, नंबर 4 जो है क्रूशियल पोजीशन है इसमें, और इनको अब मौका मिला है और इनको चाहिए भी मैच को खत्म करके आए। और क्या है कि देखिए, अभी तक इन्होंने अच्छी पारी खेली है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो जो विक्रांत कह रहा था कि फिनिशिंग टच नहीं अभी इन्होंने दिया कि हाँ अभी मैंने अकेले में अपने दम पे मैच जो जिता दिया। बट ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए, जैसे टीम बनाई गई है, अच्छी टीम बनाई गई है, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने भी यही चुना। और यहाँ पर दर्शकों को हम बता दें, जिस टीम को आप देख रहे हैं, दरअसल 1-2 दिन में या 1-2 महीने में फैसला नहीं लिया जाता है। पिछले 1 सालों के प्रदर्शन को आंका और देखा जाता है। बहुत सारे प्लस माइनस होते हैं इन खिलाड़ियों के, जिनके आधार पर इनका चयन किया जाता है। और ये है वर्ल्ड कप की इंडिया, जिसको लेकर अब ये टीम इंग्लैंड जाएगी विराट कोहली के नेतृत्व में, और उनके ऊपर दारोमदार होगा वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन ट्रम्प कार्ड कुलदीप यादव साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। स्पिनर हैं, युवा खिलाड़ी, जोश से लबरेज। कुछ दिन पहले उनसे भी जब बातचीत की गई थी वर्ल्ड कप को लेकर, तो उन्होंने अपनी क्या राय जाहिर की थी, जरा सुन लेते हैं। तो जो मेरा गोल है वो वर्ल्ड कप मैंने डिसाइड कर लिया है अभी से, कि हाँ मैं उस पर इतना मेहनत करनी मुझे कि वो मुझे अचीव करना है। आप बोल सकते हो गोल मुझे? मेरा एक ही सपना है कि मैं सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच बनूं। मैं सेमीफाइनल में 5 विकेट निकाल के मैं फाइनल में टीम को पहुंचाऊं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनल, क्योंकि फाइनल तो सब सोचते हैं, पर मेरा एक ही है कि मैं सेमीफाइनल में, क्योंकि वो बड़ा गेम है, हमेशा बड़ा गेम होता है सेमीफाइनल। और 2015 में हम लोग सेमीफाइनल में, हाँ, तो मेरे हिसाब से सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड में मैं खेल चुका हूँ, मुझे कंडीशंस पता है मुझे कैसी रहेंगी वहाँ पे। बहुत मज़ा आता है बॉलिंग करने में। अगर आपका बॉल वहाँ पे चल रहा हो, आप किसी भी ओपोनेंट को आउट कर सकते हैं, आप फटाक से पता भी नहीं चलेगा, 5-6 विकेट ले जाएंगे। तो मैं अपनी स्किल पे बहुत बिलीव रखता हूँ
और टीम मेरी बहुत बैक करती है मुझे और चहल को, और तो वो बहुत अच्छा साइन है। और थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि काफ़ी टीमें अच्छी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा क्रिकेट खेल के आ रही है, और क्योंकि इंडिया में खेल रहे थे तो विकेट स्लो थे यहाँ पे जनरली, पर वहाँ खेलेंगे तो अलग फॉर्मेट अलग कंडीशंस रहेंगे। और इंग्लैंड की टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है, लास्ट सीज़न भी वो अच्छा खेले थे। जब उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने फटाफट उन्होंने चेंज किया, तो वो चीज़ वहाँ पे होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ फिर से होगी, तो उसके लिए तैयार हूँ। और बाकी टीमें IPL जो है इंटरनेशनल की, पाकिस्तान अच्छी टीम है, ये ऐसी टीमें हैं, पर हमेशा मैं सोचता हूँ कि इंडिया टीम बेटर रहेगी। वर्ल्ड कप पर कुलदीप यादव को आप सुन रहे थे, और अब ये सपना सिर्फ कुलदीप यादव का नहीं है बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान का है। शानदार प्रदर्शन वो करें क्योंकि उनका भी चयन किया गया है, ट्रम्प कार्ड वो हम सब के लिए साबित हो सकते हैं। इस टीम में बेहद महत्वपूर्ण जगह उनकी, और इसी वजह से आपको ये भी बता दे चले, थोड़ी देर में सुनील गावस्कर भी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुलदीप यादव भरोसा जताते हुए, और अब तो एक सपने का जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल उनका सपने तो बगैर सपनों के कोई होता नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि उनके लिए जितने भी जो प्लेयर जो चुने जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। मेरे ख्याल में शायद 1-2 प्लेयर इससे पहले 2 या 3 प्लेयर वर्ल्ड कप खेले हैं, बट बाकी दो तो 2011 वाले हैं, विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और बाकी 7 प्लेयर जो हैं वो 2015 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे थे। खेल चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेल चुके हैं, बट लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका। मैं चाहूंगा कि इंडिया जीतेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीम बहुत अच्छा खेलेगी। मदनलाल जी के पास में आओ, लेकिन उसके पहले विक्रांत के पास एक बार फिर से जाते हुए। विक्रांत, चूंकि कुलदीप यादव को भी बहुत बड़ा मौका मिला है, पहले से इस खिलाड़ी पर भरोसा भी कई बार जताया गया, उन्होंने निराश भी नहीं किया, और एक बहुत बड़े सपने के साथ अब वो मैदान में उतरेंगे इस बात का भरोसा देते हुए हिंदुस्तान को। कुलदीप और चहल, चित्रा दोनों, क्योंकि 2 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी जब इंडिया हारा था फाइनल में, तभी से आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने मन बना लिया था कि इसी तरह की पिचेस होंगी, इसी तरह का मौसम वर्ल्ड कप में होगा, और फिंगर स्पिनर्स का इतना रोल था नहीं। हालांकि आज जडेजा को टीम में लिया गया है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन और जडेजा उस वक्त जोड़ी कौन सोच सकता था भारत तोड़ देगा। आपने इन दोनों यंग रिस्क स्पिनर्स में इन्वेस्ट किया, और अब देखिए इन दोनों ने आपको ज्यादा मैचेस जिताए हैं। हाँ, बीच में कुलदीप की परफॉर्मेंस भी IPL में गिरी है, लेकिन IPL में किसी भी गेंदबाज की पिटाई हो सकती है, और अब यही है कि आने वाले जो 15-20 दिन है, वो चहल हो, कुलदीप हो, इनका कॉन्फिडेंस ना गिरे, क्योंकि ये जोड़ी जब थोड़ी सी हिलाई गई, मतलब एक को खिलाया, एक को रेस्ट करा दिया, फिर दूसरे को खिलाया, उसको रेस्ट करा दिया, तब से इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अफेक्ट हुई है। तो अगर आप के कप्तान की कॉन्फिडेंस इन दोनों को देते हैं कि भैया आप मेरे 2 बड़े मैच विनर्स हैं, इनके 20 ओवर आपको हर मैच में 4, 5, 6 विकेटें दिलाएंगे, और आज की तारीख में बड़े मैचों में अगर आपने रन रोकने हैं तो आप विकेटें लेके ही रोक सकते हैं। अगर आप भारत के पूरी गेंदबाजी को देखें, बुमराह, मोहम्मद शामी, ये दोनों रिस्क स्पिनर्स, पे केदार जाधव बॉल करेंगे, हार्दिक पांड्या गेंद करेंगे, तो आपको बेहतर गेंदबाजी दिखती है बृहस्पति तब, जबकि 2 साल पहले आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए थे। मुझे लगता है भारत को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो दारोमदार इन गेंदबाजों पर तो है, लेकिन अगर बल्लेबाज 300-325 रन बोर्ड पर लगाते रहेंगे तो भारत तभी जीतता रहेगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे टीम भावना के साथ टीम जब मैदान में उतरती है, हर एक खिलाड़ी अपना बेस्ट दे, तो उसके बाद तस्वीर अलग ही होती है। लेकिन विक्रांत, जल्दी से एक और बात बताइए हमारे दर्शकों के लिए। कुल 10 टीमें हैं, जिनमें से हर एक टीम को 9 मैच खेलने होंगे आमने सामने वाली हर एक टीम से। इसको लेकर जो ये बदलाव किया गया है 1992 के बाद, मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों के लिए आप ये भी बताइए कि इसको लेकर मैच का रुख कैसा हो सकता है आगे आने वाले वक्त में। नहीं, ये पहली बार और आखिरी बार 1992 जैसे आपने कहा, वो पहला वर्ल्ड कप था जो सफेद गेंद के साथ खेला गया था और कलर्ड कपड़ों में खेला गया था। अच्छा, आप कुदरती जो उस टीम के कप्तान थे भारत के, वो आपके स्टूडियो में हैं, अजहर भाई हैं। उसके बाद से इस फॉर्मेट को नहीं अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये बेस्ट इसलिए है चित्रा क्योंकि हर टीम को एक बार खेलेगी। तो ये नहीं है यार मैं गलती से उससे हार गया, यार उसने उसको गलती से हरा दिया तो सेमीफाइनल में आ गया। यहां जब आप हर टीम को एक बार खेलेंगे तो बेस्ट 4 टीमें आती हैं। अच्छा, भारत की मुझे लगता नहीं कि आखिरी 4 की कोई चिंता है, हालांकि पहले 4 मैच भारत के थोड़े मुश्किल हैं कंपैरेटिवली। आप पहला मैच साउथ अफ्रीका को खेलते हैं, फिर आप ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, न्यूजीलैंड खेलते हैं, पाकिस्तान खेलते हैं। तो पहले 12 दिन में भारत ने जो 4 बड़े मुकाबले खेलने हैं, आप ये मान के चलिए कि 3 मैच अगर भारत जीत जाता है तो आखिरी 4 में जाने से कोई रोक नहीं सकता, फिर थोड़े आसान मैचेस आएंगे। तो आपको बस ये है कि बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए कहते हैं ना कि यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट, सही वक्त पर आपको पीक करना है। लेकिन बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको शुरुआत भी बड़ी अच्छी करनी पड़ती है। बिल्कुल, जब नींव अच्छी पड़ेगी उसके बाद ही बुलंद इमारत बनती है, और इस बात को लागू करना इन खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। विक्रांत ने आपके नाम का जिक्र किया 92 में, मैं चाहूंगी उसके बारे में बताइए, इस बार उसका असर कैसा देखने को मिलेगा?
देखिए 92 में बिल्कुल अलग था। हम लोग ने उतना अच्छी इनिशियली अच्छा नहीं खेले, बाद में थोड़ा अच्छा खेलने लगे मेरे ख्याल में। बट जो वर्ल्ड कप में अगर आप वर्ल्ड कप को जीतना होता है, सेमीफाइनल फाइनल में आपको रीच होना है, तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे हमारी 92 में कंसिस्टेंसी नहीं थी। बट मैं चाहूँगा कि अगर भारत को इस 2019 में अगर इंशाल्लाह मैच जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो उनको बिल्कुल कंसिस्टेंसी एक्सआर करनी पड़ेगी और मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, कभी एक मैच में अच्छा, कहीं 2 मैच में अच्छा उल्टा सीधा होगा, तो वहाँ पे जाके हमको दिक्कत हो सकती है। बट मैंने समझता हूँ कि ये टीम कंसिस्टेंसी को लेके पीछे रहेगी। 92, 96 और 99 की टीम का आपने प्रतिनिधित्व किया था, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक निरंतरता की जरूरत बहुत जरूरी होती है, और वो जब टीम लेकर मैदान में जाती है तो फिर परफॉर्मेंस बेस्ट ही होता है। मदन लाल जी। हाँ बिल्कुल, देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना बड़ा जरूरी है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए जब आपने इतने मैचेस खेलने हैं, 9 मैचेस खेलने हैं, किसी ना किसी खिलाड़ी को अपना एक किरदार निभाना होगा। कई बार टीम मुश्किल में आती है, पर अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं इनके पास जो कि वो भी मैच विनर प्लेयर बन सकते हैं, अगर ऐसा चलता चला जाएगा तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं वर्ल्ड कप जीतने के। बाकी बॉलिंग अटैक जो है वो आपको वर्ल्ड कप जिताने के जगह जिताएगा, क्योंकि अगर हमारे एज ए यूनिट हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग कर दी अच्छी, तो मैं समझता हूँ कि जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं लौटूंगी अजरुद्दीन जी आपके पास। हमारे साथ सुनील गावस्कर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। और सबसे बड़ा सवाल दिनेश कार्तिक को लेकर जो हमारे 2 एक्सपर्ट यहां से उठा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दिनेश कार्तिक को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, एक तो सरप्राइज ये कह सकते हैं कि दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत की जगह है और रविंद्र जडेजा दीपक का 4th सीमर की जगह है। पर इससे टीम कमज़ोर नहीं हुई, इससे टीम वैसे ही मजबूत है। यही तो भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य है कि इतने सारे क्रिकेटर्स उनके पास है, अवेलेबल है। तो आप एक को चुने दूसरे को नहीं चुने, फिर भी मैं समझता हूँ टीम में इतना फर्क नहीं होगा। टीम वैसे बड़ी मजबूत टीम है ये महत्वपूर्ण बात सुनील गावस्कर जो शेयर कर रहे हैं, इसको किस तरह से अजरुद्दीन आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सनी भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कि कोई प्लेयर का नहीं है। और मेरे कैप्टन भी रह चुके हैं और मनदीप के भी कैप्टन रह चुके हैं और खेले भी हैं। तो मैं उनके जो भी वो कमेंट दे रहे हैं बिल्कुल एक सीरियसली लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सनी भाई के भी विशेष टीम के साथ तो 100% हर बार रहेंगे। तो वो बहुत एकदम पिलर ऑफ इंडियन क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि उनके भी विशेष रहेंगे तो मेरे ख्याल में टीम जरूर से भरपूर बनेगी। विक्रांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रांत, जो बातें अजरुद्दीन ने कही और जिस बात का जिक्र सुनील गावस्कर कर रहे थे, लेकिन एक और अलग बात, ऋषभ पंत को लेकर एक अलग तरह की सिंपैथी भी देखी जा रही है, एक सहानुभूति है, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए? और ऋषभ भी इस वक्त अगर टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे तो वो काफी ज्यादा निराश होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी शायद। देखिए, आपको ना कहते हैं कि खिलाड़ी को मौका कब देना है। खिलाड़ी को मौका तब देना है जो वो ऊपर चढ़ाई कर रहा हो, जब वो ऊपर जा रहा हो, इंप्रूव कर रहा हो। ऋषभ पंत ऊपर जा रहे हैं, कहते हैं ना कि ही इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है। दिनेश कार्तिक को आपने चुना है, शायद दिनेश कार्तिक, वीडियो अपॉलॉजी टू हिज फैंस, वो नीचे आ रहे हैं। अब वर्ल्ड कप में उस खिलाड़ी को नहीं लेकर जाएंगे जिसे 14 साल लग गए, और हर वर्ल्ड कप या हर सीरीज से पहले ये सवाल होता है यार दिनेश कार्तिक को रखें कि ना रखें। ये आप उनकी खासियत भी मान सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 14 साल में जो खिलाड़ी अपनी टीम में हर सीरीज में जगह ना बना पाए, आप उसे वर्ल्ड कप लेकर जा रहे हैं एक क्रिटिकल रोल के लिए। भले ही एमएसके प्रसाद ने कहा कि नंबर 4 विजय शंकर हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा, एक हालात इस टीम के साथ आ सकते हैं जहां पर आपको नंबर 4 का विकल्प और ढूंढना होगा। ऋषभ पंत ने भी मौकों को जाया किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पोटेंशियल है। मैं कहता हूं 9 मैच आपने खेलने हैं। ऋषभ पंत हो सकता है 6 मैचों में फेल हो जाए, लेकिन 3 मैच विक्रांत में लौटती हूँ आपके पास। ऋषभ पंत का हम जिक्र कर रहे हैं और यही सवाल सुनील गावस्कर से भी मैं ले लेती हूँ। सुनील जी, ऋषभ पंत को लेकर एक अलग तरह की सहानुभूति है, उन्हें मौका नहीं दिया गया, इस निर्णय को आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, जिस तरह की उनकी फॉर्म थी आईपीएल में, उसके पहले भी जिस तरह से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो टीम में आएंगे। और खास करके क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और जैसा मैं कहते आया हूँ कि आपके अगर टॉप ऑर्डर में अगर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज हो, एक शिखर धवन है, दूसरा और एक होता, तो फायदेमंद होता। पर सिलेक्शन कमेटी ने जो निर्णय लिया, बस वो मैं मानूंगा, क्योंकि ये आखिरकार हमारी टीम है। और मैं ये हमेशा बिलीव करते आया हूँ कि आप या सिलेक्शन आपकी जो सिलेक्शन होती है, आप
जिस प्लेयर को चाहते हैं टीम में, अगर वो टीम में नहीं हो तो हाँ आपको थोड़ा सा दुख जरूर होता है, पर ये हमारी टीम है, ये भारतीय टीम है। तो अभी जो टीम चुनी गई है उनको क्रिटिसाइज मत करिएगा, क्योंकि हमें इनको एनकरेजमेंट देनी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्यों आ गया, ऐसा नहीं कहना है। हमें ये कहना है कि ये जो टीम है, हमारी शुभकामनाएं इस टीम के साथ है और यही आशा करेंगे कि ये टीम ट्रॉफी लेकर वापस आएगी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुनील गावस्कर, इस बात का भरोसा जताते हुए कि ये जो टीम, ये जिनके चेहरे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी टीम है, टीम इंडिया है और इन्हें शुभकामनाएं दिए जाने की जरूरत है। हालांकि ऋषभ पंत को लेकर सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा होता है और उसके चुने जाने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो थोड़ी निराशा भी होती है। सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाने चाहिए, पीछे रखेंगे, ठीक है हमारी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा पूरा सपोर्ट है टीम के लिए और मेरी दुआएं भी हैं। लेकिन ऋषभ पंत आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये भी कहना कि आपके पास संभावनाएं बहुत हैं, अब प्रयास जरूरी है, आप प्रयास करते रहना, आज नहीं तो कल बिल्कुल ऋषभ पंत तो प्रयास करते ही रहेंगे। मेरे ख्याल में जैसे सनी भाई ने खुद कहा कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते तो बिल्कुल अलग तरीके होते और यंग प्लेयर है, आगे भरपूर प्लेयर है, अच्छा वो गलत है, मैं उसके ऊपर मानता हूँ। मैं टीम के लिए, मैं ठीक है जो टीम हुई हमको आपको मानना पड़ता है, टीम को सपोर्ट करना वो हमारा काम है। ठीक है, मदन लाल जी से विक्रांत कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, सीधे मुंबई चलते हैं। विक्रांत आपका सवाल था मदन लाल जी के लिए? नहीं, मदन जी से अगर मैं पूछना चाहूँ तो सिर्फ इतना कि भले ही हम ये कह रहे हैं पाजी की मुकम्मल है गेंदबाजी, अगेन क्या चौथा तेज गेंदबाज लेकर जाना चाहिए था, या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या और विजय शंकर चौथा गेंदबाज या पांचवा तेज गेंदबाज के तौर पर ठीक है? क्योंकि ये सही है कि इंग्लैंड पहले जाते थे तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार आप वर्ल्ड कप 3 तेज गेंदबाजों के साथ खेलने जाएंगे, बट क्या आप चौथा लेकर जाते? टेम्पटेशन थी? मदन जी आपके लिए सवाल, चौथा सिम बॉलर आप ले जा सकते थे, चांस है, क्या पूछ रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हार्दिक पांड्या काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है, उन्होंने काफ़ी मैचेस में पूरे कोटा ऑफ ओवर भी किया और विकेट्स भी लेता है, क्रूशियल विकेट्स आकर लेता है। मैं समझता हूँ कि उसका बहुत क्रूशियल रोल है वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो इंडियन टीम को काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और उसके साथ रविंद्र जडेजा भी है, अगर कहीं ऐसा लगे, मतलब टीम अच्छी है कुल मिलाकर, टीम बहुत अच्छी है, पर ऋषभ पंत के बारे में फिर बोलूं, ऋषभ पंत को लेकर थोड़ा सा है कि अगर वो चुने जाते तो शायद तस्वीर अलग होती है हमारे दोनों ही मेहमानों का। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मदन लाल जी आपका, मोहम्मद अजरुद्दीन आपका, हमारे साथ सुनील गावस्कर जुड़े हुए थे, सुनील जी आपका भी, और साथ ही विक्रांत मुंबई से आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, अब जिस टीम से हमें उम्मीदें हैं वो चेहरे ये हैं, वर्ल्ड कप की इंडिया ये है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केदार जाधव, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, KL राहुल, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया है। उम्मीद हम करेंगे कि ये हमारे खिलाड़ी बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन जैसा कि हमने कई मैचों में देखा है, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखा है, और इससे भी बड़ा अगर मैं जाऊं 1983 के वर्ल्ड कप के दौरान और साथ ही 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह से हमारी टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया था, ये टीम इंग्लैंड में जाकर बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन करेगी। और वैसे भी कहा जाता है इंग्लैंड की जो धरती है वो टीम इंडिया को काफी ज्यादा सूट करती है, क्योंकि पहला मुकाबला हमने वर्ल्ड कप का वहीं पर जीता था और इस बार भी बारी है सबको हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम करने की। हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के हर बड़ी खबर के लिए लेकिन आप जुड़े रहिए आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।